Prabhuji, I'm actually, like you said today, we all are really blessed, Prabhuji, to be in association, in this association. In fact, Prabhuji, whenever even I used to go to the temple and do japa, I don't know, there was distraction. I wouldn't get this kind of vibration to do japa. I'm so happy that, I don't know, even though we all are so far away, we are able to concentrate and I don't know, some vibration comes through this, even though we're all so far away. I think all the devotees are so nice here that we get so nice association and be able to do japa. So, Prabhuji, I thank you so much for this. And my request is please don't stop this online japa at all, Prabhuji. And in fact, I've taken a New Year resolution that I should do japa 16 rounds every day in the morning. Supposing I am not able to do for any reason, I it by doing extra 2 rounds. So I will try I will try and definitely attend the japa, Prabhuji. And Prabhuji, when I was at home, when we do japa at home alone, you just cannot do even one round. I cannot sit and chant and the mind goes here and there. But here now I cannot imagine that myself I have done 32 rounds. I've been doing 32 rounds. Prabhuji, that's one I wanted to just tell. Prabhuji, I have got two questions, Prabhuji. One is that we say that as per our 4 regulative principles, we are not supposed to do gambling. Some of my other devotee associates told me that even share market is like gambling. So we are not supposed to invest in share market. So I want a little clarification on that, Prabhuji. One. Second, Prabhuji, you have always been telling that our sadhana should be very good. We should do very good sadhana. I want two things. In sadhana, what I understand in sadhana is you should do japa, you should read and you should hear. Prabhuji. So I want to know in this which is more important, and as Grahastha devotees, how we should prioritize, what should be our program to complete the sadhana and do the best sadhana, Prabhuji. Thank you very much, Mataji. It gives me so much inspiration when devotees come and tell me that they'll be committing themselves every day. I'll speak in Hindi. You can understand Hindi, Mataji? Yes, I can understand because I was fluent in English. I just told in English. I can understand Hindi. There are many devotees who could not understand English. No problem. You can tell in Hindi, Prabhuji. ये मुझे बहुत अच्छा लगा माताजी कि आप जो है ये कमिटमेंट ले रहे हो, और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा ये लग रहा है कि सब डिवोटीज को यहाँ पे इतना इंस्पिरेशन मिलता है. ये मेन रीजन जो इंस्पिरेशन का होता है ना, ये क्यों हुआ है, क्योंकि दूसरे सब डिवोटीज की वाइब्रेशन हमको मिल रही है. हर एक डिवोटी जो है ना, जब मेरे गुरु महाराज को एक बार मैंने प्रश्न पूछा था, राधानाथ महाराज को, कि जब आप भागवतम क्लास देते हो राधा गोपीनाथ मंदिर में, वहां पे मैं जब बैठता हूँ और उस समय मुझे मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में इतना इंस्पिरेशन मिलता है, इतना मेरे को कमिटमेंट दिखता है मेरे लाइफ के अंदर. लेकिन वही भागवतम क्लास जब मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने ले लिया रहता है और आईपॉड के अंदर या किसी भी कोई भी गैजेट से मैं सुनता हूँ, तो उतना ही वही क्लास होता है, लेकिन वो क्लास जो है उतना मुझे इंस्पिरेशन नहीं देता है. तो ये क्या रीजन है, ये क्यों फर्क पड़ गया? उस समय वही क्लास था, वही था सब चीज, तो भी मुझे इतना इंस्पिरेशन नहीं मिला. तो महाराज ने मेरे को उस समय बताया था कि उस समय जो है जब तुम मंदिर में बैठते हो तब दूसरे सब डिवोटीज तुम्हारे साथ में बैठे होते हैं. वो डिवोटीज का जो वाइब्रेशन होता है, वो आदान प्रदान होता है, वो इतना चार्जिंग होता है. वो चार्जिंग की वजह से तुमको जो है तुम्हारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है. उसी हिसाब से जो है माताजी, आप जब भी जो है अकेले जपा करते हो तब जो है वो वाइब्रेशन का फायदा नहीं मिलता है. यहाँ पे सब भक्त लोग साथ में आए, और आई कैन टेल यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट राइट नाउ, आई एम सेइंग यू फ्रॉम माई हार्ट राइट नाउ, मुझे भी जो है ना बहुत अच्छा लगता है. ये जपा करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो बनिया हूं ना, मैं तो बेसिकली आई एम ए बिजनेसमैन. मैं जो है ना, जब तक मेरे को फायदा नहीं मिलेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं. एंड दैट्स व्हाई आई फील सो अटैच्ड टू दिस प्रोग्राम, just because the vibrations are so wonderful. Why? Because everybody's motive is only one thing. सबका एक ही उद्देश्य है. We just wanted to improve our japa. We wanted to increase our Krishna consciousness, and we have absolutely no interest anywhere, gross or subtle, anything from Krishna. Only wanted to serve Krishna. ये वाइब्रेशन से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है. Krishna becomes so pleased with us.
Krishna becomes so Mataji, please take it very seriously, and I'm very happy that you are taking this commitment in New Year, but please maintain it out. When you are very enthusiastic, you take some commitment, but then after some point of time, to maintain requires lots of commitment and lots of dedication and lots of sincerity. तो जो है आप अगर मेंटेन कर पाए तो वंडरफुल है। अभी रहा सवाल जो है गैम्बलिंग का, गैम्बलिंग बीइंग इन द स्टॉक मार्केट, आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स अगर आपने 3 चीज बराबर पकड़ करके रखा है कि वो इन्वेस्टमेंट आप पहला तो कोई लोन या कोई अननेसेसरी एंजाइटी वाला कुछ भी नहीं करते हो, आपके पास जो भी पैसा है वो पैसे में से आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स लेते हो, और वो लेने के बाद में यू आर ए लॉन्ग टर्म प्लेयर, यानी आप डालने के बाद में आप भूल जाते हो। जिस तरह से आप रियल एस्टेट में जगह लेते हो तो आप जो है रोज का रोज भाव नहीं देखते हो, जिस तरह से आप गोल्ड लेते हो तो गोल्ड लेने के बाद में रोज का रोज भाव नहीं देखते हो, उसी हिसाब से अगर आपने कोई स्टॉक्स या कोई म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स लिए और लेने के बाद में आपका ही पैसा लगाया है और लॉन्ग टर्म रखा है, और आपको जो है वो लंबे समय के बाद नहीं देखना, जैसा रियल एस्टेट में कोई फ्लैट या प्लॉट लिया रहता है तो वो जो है आप लंबे समय के बाद नहीं देखते हो, गोल्ड भी जो है लंबे समय के बाद में देखते हो, उसी हिसाब से अगर आपने ये भी बराबर लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो देन इट इज नॉट ए गैम्बलिंग, it is an investment. The way we do the investment in real estate, the way we do it in gold, the same way we have done investments in stocks. Gambling is only for one why we don't encourage stocks and stocks as a, why say stocks as a gambling? हम stocks को क्यों gambling बोलते हैं? क्योंकि जब उसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन होता है, वो सट्टाबाजी होती है, और वो लेकर के बेचना ले बेचना जो है करते रहते, रोज का भाव का डिफरेंस के अंदर, that is gambling, because that disturbs your consciousness, that disturbs your mental stability. वो नहीं करने के लिए जो है अगर आपने लॉन्ग टर्म भूल जाते हो, it is not a gambling. Because I have seen it, और उसके अंदर सबसे मैक्सिमम एप्रिसिएशन वहीं पे मिलता है। I can tell you right now जो है इक्विटी मार्केट्स के अंदर जो है आज 15% का रिटर्न, कंपाउंडेड रिटर्न मिल रहा है। तो अगर 15% का कंपाउंडेड रिटर्न अगर आप कैलकुलेशन करो तो 10 साल के अंदर पैसा 4 गुना पैसा होता है। इतना एप्रिसिएशन आपको रियल एस्टेट में भी नहीं मिलने वाला है, गोल्ड में भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो है अगर आपको डिवोटीज को जल्दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और डाल करके भूल जाना है, आपको एंजाइटी नहीं रहती। जैसे हमने अगर गोल्ड लिया है तो आपको एंजाइटी रहती है, रोज भाव ऊपर नीचे हुआ तो फर्क पड़ता है क्या? हम लोग ने लॉन्ग टर्म छोड़ दिया है। फ्लैट या प्लॉट भी लिया और थोड़ा भाव पीछे भी हो तो आपको टेंशन आता है क्या? क्योंकि हमने लंबे समय तक छोड़ दिया है। उसी हिसाब से अगर आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स लिया है और आपने जो है लंबे समय तक रखा, ऊपर नीचे ऐसा कोविड वाला कुछ आया और आपको फर्क नहीं पड़ गया, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म है, आपको एंजाइटी नहीं आएगी। अगर आपको एंजाइटी नहीं आती है, आपने आपका खुद का ही पैसा लगाया है और आप लॉन्ग टर्म प्लेयर रहना चाहते हो, इट इज नॉट ए गैम्बलिंग, इट इज ए इन्वेस्टमेंट, or it gives you maximum appreciation so that you can retire at the right time. I can tell you, अगर आपने 1 लाख रुपया डाला है और 10 साल में 4 गुना पैसा होता है और 20 साल में 16 टाइम्स एप्रिसिएशन आता है, यानी क्या है, अगर आपने 10 लाख रुपया डाला है तो 20 साल के अंदर 1,60,00,000 रुपया मिलता है। माता जी, ये इतना पैसा आपको कहां पर भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। That's why I always tell everybody, मैं सब लोग को कहता हूं कि अगर एक डिवोटी होगा, उसने अगर अपना अच्छी तरह से ही, उसको बहुत बड़ा बड़ा एस्पिरेशन नहीं है, बहुत बड़ा जो है सपना नहीं है, सिंपल लाइफ जीना है और कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस करना है, आई कैन टेल यू विद गारंटी 20 साल के अंदर ही वो डिवोटी परमानेंटली रिटायर हो सकता है। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैंने मेरी लाइफ में देखा है, मैंने मेरी लाइफ में अनुभव किया है, मैंने भी मेरी लाइफ 0 से चालू किया है। I have seen it and I can say with 100% conviction, simple life, focused life, no doing any gambling, nothing nonsense, खाली जो पैसा, वही पैसा में आराम से जिंदगी जी सकते हो। 20 years is sufficient for your future full corpus, and from that you can survive for the whole lifetime. Is it okay? So now this was about first gambling wala thing. I forgot about the second question, Mataji. It went out of my track. What was the second question? Prabhuji,
Prabhuji, I was asking about sadhana. In sadhana, we have japa, reading, and hearing. Correct. So we are doing japa, but how to cover the other two areas, and what is the priority? And please tell us, as matlab, we are grahastha devotees, how we complete the sadhana, and what is the best sadhana also I want to know. The best sadhana, माता जी का प्रश्न है कि जो है साधना किसको बोलते हैं, और साधना को जो है रीडिंग को बराबर ध्यान देना चाहिए कि हियरिंग को ध्यान देना चाहिए, और साधना का डेफिनेशन क्या है. साधना मीन्स वेरी क्लियरली सुबह के टाइम रीडिंग, हियरिंग means completely getting whatever the Guru Maharaj has told us, keeping very, very focused about Krishna consciousness. Basically, it is hearing and chanting and serving the devotees to some extent, but the main focus is hearing and chanting. That is the meaning of sadhana. अभी जो साधना के अंदर जो है, आपको पहला प्रायोरिटी जपा को देना चाहिए, बिकॉज वी हैव टेकन ए वाव. हमने जो है गुरु महाराज के सामने पहला वाव ले लिया है कि मैं रोज 16 माला अटेंटिवली करने वाला हूं, तो उसके ऊपर प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए. और मैं कह सकता हूं कि जो भक्त ने जो है वो 16 माला का कमिटमेंट बहुत सीरियसली लिया है, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी होती है. आई टेल एवरी डिवोटीज, प्रभु जी, मैं हर एक भक्तों को कहता रहता हूं कि प्रभु जी जो है उसकी साधना में स्ट्रांगनेस कभी आ जाएगी जब वो जो है अपनी 16 माला किए बिना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जॉब के लिए. दैट इज स्ट्रांग साधना. और एज फार एज माता जी से कंसर्न, माता जी जो है सुबह के टाइम पे वो प्रसाद बनाना होता है, टिफिन बनाना होता है. ऑफ कोर्स देयर आर आई एम शॉक्ड टू सी देयर आर माता जी फ्रॉम सिटिंग फ्रॉम दुबई एंड ऑल दोस प्लेसेस. ये माता जी जो है बेसिकली 5 बजे हम चालू करते तो वो माता जी वहां पे 3:30 बजे रहते हैं. वो माता जी रोज 2 बजे उठती है, 2:30 बजे तक स्नान कर लेती है, 2:30 से 3:30 के बीच में उसकी सब कुकिंग और वह सब चीज खत्म करती है, और 3:30 बजे हमारे साथ में जपा करने बैठती है, और जपा खत्म हो जाने के बाद में शी गोज फॉर द जॉब ऑल्सो. नाउ दिस इज नॉट, एवरीबडी कैन नॉट डू इट, शी इज एन एक्सेप्शनल माता जी. बट अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है आइडियली होना चाहिए कि सुबह में उठ करके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो. आपका हस्बैंड आपके बच्चे के लिए आपको उसको स्कूल में भेजना है, बच्चे का हस्बैंड का टिफिन बनाना है, दैट यू हैव टू डू इट. बट द माता जी आल्सो हैव टू टेक ए वेरी सीरियस कमिटमेंट इज वो अपना लंच प्रसादम नहीं लेंगे जब तक उसका 16 माला नहीं होना चाहिए. दिस इज कमिटमेंट. एक्शन शुड स्पीक मोर देन द वर्ड्स. We have to prove to Krishna that we are serious in Krishna consciousness, and talking doesn't work out. So the first thing is absolutely no compromise as far as japa is concerned. And I can tell you with 100% conviction, जिन लोगों ने इस तरह से कमिटमेंट लिया है और स्टेडीली मेंटेन करते हैं प्रभु, just see their consciousness, how much blissful they are. They have understood the depth of Krishna consciousness. They have understood what is Krishna consciousness. Krishna consciousness में कितना नेक्टर है, क्योंकि कृष्णा ने उन्होंने कृष्णा को फर्स्ट प्रायोरिटी रख दिया है. जैसा वो लोग ने कृष्णा को फर्स्ट प्रायोरिटी रख दिया है ना, कृष्णा ने भी उनको फर्स्ट प्रायोरिटी कर दिया है. So we have to have first thing is japa. As far as reading and hearing is concerned, my Guru Maharaj has made it very clear with me कि जो है whatever that gives you maximum nourishment. There are ऐसे डिवोटीज है जिनको जो है उनको ग्रास्पिंग पर वो रीडिंग नहीं कर सकते, लेकिन वो हियरिंग अच्छा कर सकते हैं. कोई ऐसे डिवोटीज है जो हियरिंग अच्छा नहीं कर सकते लेकिन रीडिंग अच्छा कर सकते हैं. सो व्हाटएवर दैट गिव्स यू, बिकॉज अगर आपने हियरिंग जो भी करोगे वो हियरिंग रीडिंग में से ही जो है वो बुक्स प्रभुपाद की बुक्स रहेगी, उसी में से वो जपा बोलने वाला है. और अगर आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग इज कंप्लीटली गिविंग द फुल डिटेल अबाउट द स्क्रिप्चर्स. So whatever that gives you nourishment as per your bodily structure, your mentality and everything, that you have to accept it out, and that will make your Krishna consciousness smooth. So whatever that gives you nourishment. So if you feel it, oh, I can hear nicely, very nice. I can tell you about myself. मेरे को इतना reading में नहीं जमता है, because but I like hearing. I have a very good I have good appetite for hearing. तो वो अच्छा लगता है. I had a talk with my Guru Maharaj. मेरे को नहीं इतना जम रहा है. देखो, no problem, because the person who speaks, he speaks exactly from the books only. That's why there is no problem. And he should be as per the parampara also. तो वो अगर है, तो there is nothing wrong. So again, coming back to your question is
Reading, hearing and chanting is the most important thing in the sadhana, and you have to give first focus to that. And once that is getting completely nurtured, then extra time to keep you engaged. You can do many activities like deity worship, like cooking, jewelry making, flower making, whatever that keeps you engaged and keeps you nourished. But please remember, you can do all those things, but it should not be at the cost of your other responsibilities. If you are able to do all those things together, please go ahead. But it should not be at the cost of responsibility and not at the cost of your hearing and chanting. Is it okay, Mataji? Hare Krishna. Please pray for me. Today is a New Year day. Yes, Prabhuji. Prabhuji, I wanted to tell one more thing. Actually, we have been hearing Brahmachari and Sannyasa devotees. You are a Grahastha devotee and you actually understand, you relate to us more. So it is so nice to hear you, and I can tell you, Prabhuji, definitely pray for everybody. I think we all should, everybody should progress in Krishna consciousness. Prabhuji, one more thing. Ideally, how long do you think, we are doing japa, you say 16 rounds, 32 rounds. Like that, how long do we hear in a particular day? 1 घंटा रखना चाहिए, कम से कम, we should have something for us, no? 1 घंटा तो सुनना चाहिए, ऐसे कुछ बोलेंगे क्या प्रभुजी आप? It depends upon the person to person. लेकिन जो है, जो भागवतम क्लास जो होता है हमारे गोपीनाथ हर एक मंदिर के अंदर, वो 35-40 मिनट्स का होता है, तो मिनिमम तो उतना होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा होता है तो बहुत बढ़िया है. So whatever that suits you, and all the things, whatever I am, Mataji, it is exclusively, I can tell you from the core of my heart, it's only of the mercy of my Guru Maharaj. Radhanath Maharaj has cultivated me, and I am just a puppet. Whatever is told me, I am just repeating the same thing. So nothing is of mine. Prabhuji, I have one more request. Actually, I was seeing your video with Amog Leela Prabhuji. That time you have shown your deity. Once in a while, please show your deities to us. Let us also have darshan and pray from here, Prabhuji. It is so beautiful. That is all. My son is taking care of it. But I don't know all this computer stuff. So whenever he'll be here, I will definitely show all of it. Sure, Prabhuji. Okay, anytime. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Yes, part going, Prabhuji. Anything else? Yes, Prabhu. Thank you, Mataji. Ajay Munde Prabhu is there. So just unmute. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Bol Prabhu. So, Prabhuji, first of all, I would like to thank you for making our year Krishna conscious by arranging this Zoom meeting for us, and would like to wish you a very happy Krishna conscious year ahead. और उसके बाद जो है प्रभु जी, ये Zoom मीटिंग से भी हमें इतना फायदा हुआ है. मैं बता सकता हूँ कि आज तकरीबन it's been complete 1 year 1 month for me doing morning japa, in Brahma Muhurta. We are not able to hear you properly. प्रभु जी हिंदी में नहीं, प्रभु जी अनम्यूट. सॉरी, हाँ प्रभु जी, बीच में कॉल आ गया. हिंदी में बोल दो प्रभु जी. हाँ. जैसे आपने बोला था कि 8 महीने से हमने ये जो है जपा शुरू कर दिया था. तो उसके पहले भी जो है मैंने 5 महीने उसके पहले से मैं सुबह में जपा करता था, और 5 महीने जो है मैं सुबह अकेले ही उठ के जपा करता था. मतलब जूम वगैरह कुछ होता नहीं था. तो फिर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले जपा कर रहा हूँ, मैं अकेला कर सकता हूँ, मतलब सस्टेन हो जाएगा. तो मुझे ऐसा जूम भी चालू हुआ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जूम चालू है तो मेरा जूम से और कुछ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है. लेकिन अभी जब बाद में आज 1 साल 1 महीना जब पूरा हुआ तो आज मैं चेक करके आई कैन डेफिनेटली से विद कंप्लीट कन्विक्शन कि अगर तो शायद से मैं 5 महीना ही जपा करता. 5 महीने के आगे तब जपा कर भी नहीं पाता. तब थोड़ा मेरा बोर्ड्स का ईयर था, थोड़ा इंटेंसिटी भी मेरा स्ट्रांग था, तो तब मैंने अकेले में जपा कर लिया. तो टुडे आई कैन डेफिनेटली से कि अगर जूम नहीं होता तो मेरा जपा उतना ही टाइम चलता, और जैसे ही सब वातावरण ठंडा हो जाता मेरा जपा छूट जाता. बट ओनली बिकॉज ऑफ जूम मीटिंग आई कैन वेक अप डेली. और क्योंकि जो है मेरी जैसे ही आँख खुलती है मुझे याद आता है कि सब जूम पे आए रहेंगे, और अगर मैं एक दिन भी अगर डांडी मार दिया तो प्रभु जी देखेंगे ये गायब है. तो आज वो मोटिवेशन बन जाता है उसके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस फॉर अस. और उसके बाद क्वेश्चन भी है मेरा, और क्वेश्चन भी मेरा डेफिनेटली जपा से रिलेटेड ही है. बिकॉज प्रभु जी ब्रेक हो गया, आवाज ब्रेक हो रहा है ना. हाँ बोले. अभी आ रहा है प्रभु जी? अभी आ रहा है.
तो रिसेंटली मैंने एक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का कोट भी पढ़ रहा था कि द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर चैंटिंग एंड द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉपर प्रॉब्लम्स इज प्रॉपर चैंटिंग। तो मुझे तो वो तो मैंने मतलब मेरे मोबाइल का लॉक स्क्रीन वॉलपेपर ही रख दिया, क्योंकि मुझे अभी समझ गया कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम का एक ही निवारण है जो है प्रॉपर चैंटिंग है। तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मतलब मैंने ऐसा नोट किया कि 3 टाइप्स ऑफ चैंटिंग होता है। पहला वो चैंटिंग जो कि पूरा 16 का 16 राउंड 16 का 16 माला पूरा अटेंशन के साथ फोकस से हो गया, तो वो मतलब सबसे बेस्ट चैंटिंग हो जाता है। दूसरा मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी 4-5 राउंड अच्छे हो गए, बाकी सब ढीले हो गए, तो वो मतलब एवरेज हो जाता है। और तीसरा ये कि पहले राउंड से ही जो है पूरा ढिल्ला जपा हो गया। तो जो तीसरे में जो है तो तीसरे में क्या करना चाहिए? पहले राउंड से अगर सब पूरा ढीला हो रहा है तो शुड वी चैंट मोर क्वांटिटी ऑफ राउंड्स अगर क्वालिटी ऑफ राउंड्स नहीं हो रहा है, क्या फिर ऐसे ही जैसा ढीला है वैसे ही चलते रहना चाहिए या फोकस करना ट्राई करना चाहिए? जो तीसरा नंबर में उसमें पूरा फंस जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या हो जाता है उस दिन अगर पूरा 16 का 16 बिगड़ गया तो उसका पूरा दिन फिर खराब हो जाता है, पूरा दिन का फोकस हट जाता है। तो तीसरा टाइप का जो चैंटिंग है तो उसमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? उसके लिए प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। थैंक यू। वेरी हैप्पी प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक जवान लड़का जो है 18-19 साल का लड़का जो होता है वो इतना सुंदर जपा के अंदर आ गया। मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं जब भी छोटा था ना तभी मैं इस्कॉन में नहीं था, लेकिन मैं दूसरा स्पिरिचुअल फॉलो करता था, लेकिन मैं उसी समय से हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहा था। एनीवे आई ओपन माई सेल्फ, थोड़ा मैं खुला बता देता हूँ प्रभु। आई वॉज वेरी मच अटैच टू डोंगरे महाराज। मैं डोंगरे महाराज जो है हमारे फैमिली गुरु थे। तो डोंगरे महाराज जो है मुझे बहुत प्रेम करते थे। मेरे लाइफ के अंदर जो है उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। मेरे पिताजी का एक नियम था कि जो है हर पूर्णिमा के दिन डोंगरे महाराज को दर्शन करने जाते थे। वो हर पूर्णिमा यानी हर महीने वो डोंगरे महाराज कहाँ पर भी होते थे तो उनको मिलने जाते थे। और मेरे पिताजी ने वो 19 साल जो है, जब तक डोंगरे महाराज ने अपना देह नहीं छोड़ा तब तक वो उनको मिलने जाते थे। तो डोंगरे महाराज ने जो है और मैं भी 6 साल तक मैं भी गया। फिर बाद में मेरे ऑफिस मेरे कॉलेज और सब चीज पड़ गया, तो उसके बाद में मैं नहीं जा पाया। लेकिन डोंगरे महाराज लव्ड मी सो मच कि व्हेन आई वाज ओनली 6th स्टैंडर्ड में था मैं। 6th स्टैंडर्ड यानी हो सकता है मैं 11-12 साल का हुआ होगा। तो 12 साल के वक्त भी उन्होंने मुझे बोल दिया था कि कभी भी फ्री टाइम के अंदर कभी भी वेस्ट टाइम मत करना। उन्होंने मेरी माँ के पास से जो है ना, मेरी स्कूल की चड्डी जो होती है ना, हम लोग को जो स्कूल की आधी चड्डी पहनते हैं, वो आधी चड्डी मेरी माँ से मंगवाया था। और वो चड्डी पे जो है उन्होंने देखा कि इसका खिस्सा यानी जो पॉकेट होता है वो कितना है बड़ा। तो वो देखा कि मेरा पॉकेट एकदम छोटा है, तो उनको बोला ये चड्डी निकालो, उसके लिए नया चड्डी बनाओ जिसके अंदर पॉकेट बड़ा होना चाहिए, उसका हाथ अंदर बराबर जा सके। तो उसके लिए खास मेरी माँ को नया चड्डी स्कूल का वो यूनिफॉर्म की चड्डी बनानी पड़ी। और वो चड्डी जब देखने के बाद में डोंगरे महाराज gave me small beads. I still remember and I've kept that beads with me. उस समय से जो है प्रभु उन्होंने मुझे वो बीट्स दिया था। उन्होंने कहा था कि कभी भी फ्री टाइम होता है, स्कूल के अंदर फ्री टाइम होता है, तो वो फ्री टाइम के अंदर जो है तुमको तुम्हारा सिर जो है बेंच के नीचे कर देने का और बोलने का बच्चे लोगों को मेरा सिर दुख रहा है और मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा करके सीधा खिस्से के अंदर बीट में डाल देने का और उस समय हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करते रहने का। फ्री टाइम आता है तो तभी भी वेस्ट नहीं करने का, ट्रैवलिंग टाइम में भी वेस्ट नहीं करने का। आई कैन टेल यू, ये मेरे को 6 स्टैंडर्ड से प्रभु बाय कृष्णास causeless mercy आई एम चैंटिंग दिस होली नेम एंड आई कैन से विथ 100% कन्विक्शन, नॉट कन्विक्शन, रियलाइजेशन। ये मेरे को जो है बाहर की एलोरमेंट्स जो है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र ने मेरे को बचाया है प्रभु। ए पर्सन इज अ वेरी वेरी रिच पर्सन, ओनली सन ऑफ द पेरेंट्स, plus having 99 degrees on his credit, plus a gold medalist, plus having everything under the world, to anything and everything for it, everything, but to keep a border line and not to get carried away. It was only holy name.
It was holy name. That's it, nothing else. खाली होली नेम ने मुझे बचाया है। That's why जब भी कोई जवान लड़का जब ये सब बताता है कि मैंने जपा अच्छा किया ना, मेरे को बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि ये बच्चा बच जाएगा। वरना जवानी के टाइम पे ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, ये वो किधर भी फंस गए तो कहाँ के भी नहीं रहोगे। एक भूल कर लिया आपने, आपकी लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी पछताओगे। लेकिन एक हरि नाम एक दीवार की तरह रहता है और वो दीवार तुमको जो है बाहर क्रॉस करने नहीं देगा। So very happy and satisfied the way these young people are coming up into Krishna consciousness. I can tell you, Prabhu, I have been protected और मैं secured हो गया. Of course, afterwards जो है Raghuram Maharaj left his body and then I joined Hare Krishna movement. लेकिन definitely Hare Krishna movement के अंदर the पहला attraction for me was they give tremendous emphasis to chanting the holy name, and that was my first so to say a positive thing that I could get it. कि मुझे लगा कि यही जो है मैं चीज कर रहा हूँ और ये लोग इसी पे प्रेफरेंस दे रहे हैं। और फिर डेफिनेटली देयर आर मेनी अदर थिंग्स था, लेकिन दैट वाज रियली हेल्पिंग माय कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो वेरी हैप्पी प्रभु, जस्ट कीप इट अप, जस्ट कीप इट अप। कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा सब ध्यान रख लेंगे। अरे मेरा देखो भैया, मैं जीरो लाइफ चालू किया है, पूरी लाइफ जीरो से चालू किया है, कृष्णा ने मुझे सब कुछ दे दिया। भौतिक चीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, भौतिक चीज तो डेफिनेटली बहुत दिया है, लेकिन मेरे को आध्यात्मिक से जो भी कृष्ण ने मेरे को छोड़ा नहीं है। आई थिंक आई हैव स्पोकन 2-3 हफ्ते पहले व्हेन माय बर्थडे वाज देयर, आई वाज जस्ट टेलिंग कि 30 साल से मैं प्लानिंग कर रहा था, 2-3 साल में कृष्ण ने एवरीथिंग अरेंज करके रख दिया। ये दिखा रहा है प्रभु जी, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा कृष्ण मेरे लिए प्लानिंग करते। दिस इज ऑल बिकॉज कृष्णा holy name has taken care of it. So just keep it, just control yourself. I forgot your question. Now what was the question? प्रश्न क्या था आपका? वो 3 टाइप्स ऑफ चैंटिंग का प्रभु जी, पहले अभी तो 3 टाइप्स का चैंटिंग होता है जो आपने मुझे बताया कि तीसरा वाला जो चैंटिंग होता है जिसके अंदर अटेंटिवनेस भी चैंटिंग का नहीं है और ऐसे ही खत्म हो जाता है। प्रभु, you have to be very cautious. आपको एक चीज समझ लेना है, जपा एक जो है ना प्रभु, जब कोई भी व्यक्ति लड़ाई के अंदर जाता है तो लड़ाई के अंदर जो है ना, वो जो लड़ाई का जो ऊपर का जो कपड़ा पहनते हैं ना, आई डोंट नो व्हाट डू यू से, वो जो है जैकेट, वो लड़ाई का क्या होता है, वो जो लड़ाई जब व्यक्ति बाहर जाता है ना तो वो उससे जो है ना उसको घायल नहीं कर सकते कोई भी। जैकेट कहो कि जो भी कहो, उसको अटैक नहीं कर सकते, घायल हो सकता है लेकिन वो मरेगा नहीं। प्रभु जी, हरि नाम इज दैट। हरि नाम जो है वो जैकेट की तरह है प्रभु, आपको वो घायल कर सकता है थोड़ा बहुत आपकी कंडीशनिंग की वजह से, लेकिन प्रभु आप उसमें मर नहीं जाओगे। जब आपके अंदर ये कॉन्शियसनेस बराबर रहेगा ना, और जिस दिन आपका जपा बराबर नहीं हुआ, आपको अंदर से बैल बजनी चाहिए कि आज कुछ गड़बड़ होने का पूरा सवाल, आज पूरा गड़बड़ होने वाला। रक्षा कवच, समथिंग somebody has mentioned something, so एक कवच है, एक जो है हरि नाम इज लाइक ए कवच प्रभु, और वो कवच पहन के आप जाओगे तो आप जो है घायल हो सकता है, घायल हो जाए, किधर ऐसी जगह पे लग जाएगा जहां पे कवच आप पहन नहीं सकते हो, वहां पे घायल हो सकते हो प्रभु, लेकिन आप पूरे मर नहीं सकते हो, आप यानी आप पूरे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हो। तो जब भी आपका जपा बराबर नहीं हुआ है प्रभु, अंदर से घबराहट आनी चाहिए, अंदर से इतनी घबराहट आनी चाहिए कि आज तो किधर भी गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि कृष्ण मेरे हृदय में फोकस नहीं हुआ है। और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए 2-3 ऑप्शंस आते हैं। वन ऑप्शन इज, अगर टाइम परमिट कर रहा है उस दिन का शेड्यूल में, चांट समथिंग मोर टू प्रूव योर सिंसियरिटी टू कृष्णा। कृष्णा से सामने यातना करो, कृष्णा थोड़ा जपा में गड़बड़ हुआ है, अभी एक जो एक्स्ट्रा राउंड कर रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत मेरा टाइमिंग के हिसाब से खाली एक की वजह से कर रहा हूँ, मेरे को बचा लेना, कुछ गड़बड़ नहीं कर दूंगा। दूसरा, अगर टाइमिंग में भी नहीं पस रहा है तो कृष्णा के सामने सिंसियरिटी बतानी है ना,
कृष्णा के सामने कुछ तो सिंसियरिटी बतानी है, क्योंकि टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरा कोई कमिटमेंट है, टाइम टेबल एकदम टाइट है, उसी शेड्यूल है। तो कृष्णा के सामने कुछ ऑस्टेरिटी करके दिखाना कि कृष्णा ये नहीं हो पा रहा है, तो मेरी सिंसियरिटी बताने के लिए मैं थोड़ा बहुत ये कर रहा हूँ, जस्ट फॉर वन रीजन, मेरे को ये मेरा जपा आज खराब हुआ है ना, वो खराब जपा मेरा ज्यादा टाइम चलना नहीं चाहिए, वरना मैं किधर भी नहीं रहूंगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में से फेंक जाऊंगा मैं। और मेरा ये अनुभव है, अगर ये इस समय जो है आपने ध्यान नहीं रखा और थोड़े समय तक ऐसा ही चलता गया ना, तो प्रभु जपा का टेस्ट चला जाएगा। और एक बार जपा का टेस्ट जाने के बाद में प्रभु, यू आर गॉन, यू आर गॉन। आपको खुद कोई मेहनत करनी है प्रभु जी, गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्फ। संभव आपको ये अच्छा माहौल मिल जाता है प्रभु, एक साथ में अभी डिवोटी सब बैठता है, जूम के अंदर भी आज मैं देख रहा था 50-55 डिवोटी बैठे थे, यहाँ पे भी 65 जितना डिवोटीज बैठ गए थे। तो जब ये इतना माहौल देखते हैं प्रभु, और वो भी सब 32 माला करके खड़े होने वाले थे, तो वो माहौल से अपने को फायदा मिलता है। लेकिन वो फायदा कब मिलेगा प्रभु, जब आप खुद भी सिंसियरिटी बताओगे तभी, वरना इट विल बिकम अ रिचुअल। सब माला कर रहे हैं, मैं भी माला कर रहा हूँ, इट विल नॉट वर्क आउट। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है प्रभु आपका हेल्थ खराब है, आपने नींद लिया नहीं यार। टुडे आई कैन टेल यू मेरा जप अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि आप मैंने कल रात को 2 घंटा सोया, 2 घंटा भी नहीं हुआ, 1.5 घंटा ही सोया। सो इट वाज एब्सोल्युटली, मैं चल के जपा कर रहा था, खींच रहा था मैं। बट आई कैन टेल यू कृष्णा, अभी इससे आगे तो मैं कभी सिंसियरिटी में इससे बगा नहीं सकता हूँ। बट आई केम ऑन राइट टाइम टू चैंट योर होली नेम। मैं राइट टाइम पे आ गया था तुमको चैंटिंग करने के लिए, लेकिन मेरा जपा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे ऑफ कर देना। बट कल अगर मैं इसी तरह से करूंगा तो आई एम चीटिंग कृष्णा, आई एम चीटिंग कृष्णा। इज इट ओके प्रभु? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्ण। यस पार्ट गोइंग प्रभु, एनीथिंग एल्स? Yeah, Prabhuji, one more question from Nishan Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. हरे कृष्ण, धन्यवाद। Prabhuji, I am living in base Greater Noida, connected to ISKCON Delhi. So I was very much Prabhuji, inspired. हिंदी में बोलेंगे प्रभुजी? हाँ प्रभुजी मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ। बेस है यहाँ पे सेंटर भक्ति वेदांत अकेडमी फॉर कल्चरल एजुकेशन, और इस्कॉन दिल्ली जो है राधा पार्क आती वहां से कनेक्टेड है। तो अभी मैं पिछले कुछ समय से 1-2 साल हो गया, 2 साल लगभग, आपका यूट्यूब चैनल पे मैं आपका वीडियोस वगैरह देखता था, मुझे काफी इंस्पायर लगता था आपका। मैं देख ही रहा था कि मतलब कोई चैंटिंग के ऊपर बहुत नेक्टेरियन लेक्चर्स मिले, कुछ वो मिले, तो आपका चैनल मुझे मिला था, तो मैं आपके उससे देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह। फिर ये वाली जो चीज थी, ये मैंने कल रात को ये फॉर्म फिलअप किया था, उसमें ऑप्शन आ रहा था रात फॉर्म का कि गूगल फॉर्म फिल करो, फिर वहां से जूम मीटिंग में आप ऐड हो सकते हो। तो आज फर्स्ट टाइम है ये और मैं भगवान की वो कहूंगा कि 1 जनवरी और फर्स्ट टाइम आपसे जूम मीटिंग में इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे बड़ा इंस्पिरेशन लगती हो आप मेरे लिए प्रभु, और आपका जो रियलाइजेशन बोलता है वो मुझे काफी इंस्पायर करता है प्रभु। और मेरा प्रभु एक क्वेश्चन था कि जब जपा करते हैं हम, तो उस वक्त हमें जैसे कई बार हमें कोई किस जैसे वृंदावन का है या फिर किसी और सर्विस का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का या किसी और चीज का याद आने लगता है, मतलब अंदर जपा चल रहा है और उस चीज में हमारा मन उधर जा रहा है। होता वो डिवोशनल लाइफ से रिलेटेड है, और कई बार मतलब भगवान की फॉर्म को भी हम उधर जपा करें और भगवान की फॉर्म भी ध्यान में आ रही है, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए? ये सब ठीक है या फिर हमें सिर्फ साउंड वाइब्रेशन को ध्यान से सुनना चाहिए? प्रभु जी, उस समय जो है अगर आपका माइंड जो है जपा के अलग जा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वो भी डिवोशनल प्लानिंग ही होगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, किधर प्रचार करना है, कैसा लेक्चर देना, ये करना, वो सब कृष्णा कॉन्शियसनेस से साथ में रिलेटेड होगा। लेकिन फिर भी प्रभु जी, जपा के वक्त पे वो चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है वो पोटेंसी जो जपा की रहेगी ना, वो जपा की पोटेंसी कम हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जब भी उस समय जो है हमको एक ही चीज याद रखना है, वो सब प्लानिंग बाद में, अभी मैं और सिर्फ कृष्णा ही हूं मैं, अभी सब बाद में है।
और वो सब चीज बाद में हो जाएगा। और अगर वो भी हैरान करता है और माइंड में जाता रहता है, तो तभी एक बार कृष्णा के सामने बोलना है, कृष्णा मुझे बचा लो, मेरी कंडीशनिंग मेरे को हैरान कर रही है, ये सब चीज बाद में करूंगा, अभी नहीं करना है मुझे। दिस शुड बी वेरी क्लियर प्रभु जी, वेरी क्लियर। और अगर ऐसा हो ही रहा है, ज्यादा ही हो रहा है, तो फिर देन टू प्रूव योर सिंसियरिटी टू कृष्णा, चांट सम मोर राउंड्स। तो कृष्णा को बता देना है कि मैं जो है इससे नाराज हूं, लेकिन मैं कंडीशनिंग मेरी इतनी डीप रूटेड है, इसलिए मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। आपकी कॉजलेस मर्सी मेरे लिए होप है, और वो कॉजलेस मर्सी प्राप्त करने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा माला कर रहा हूँ, जिससे आपकी मर्सी मुझे मिल जाए। दिस इज द वे इट हैज टू बी डन प्रभु। और डेफिनेटली भौतिक चीज तो जो है, जो कुछ भी आज याद आता है, आज ऑफिस में ये काम करना है, आज वो काम करना है, आज इसको ये पटाना है, आज का ये टारगेट होना है, ये करना है, दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली नॉट कमिंग इन जपा। हाँ, पहला 16 माला करते वक्त जो है, क्योंकि हमने गुरु महाराज को वाव दिया है कि मैं अटेंटिवली जपा करूंगा। एक्स्ट्रा राउंड्स अगर आप चलते हो, ट्रेवलिंग करते हो, उस समय काउंटर रखते हो या कुछ भी करते हो और उस समय आप करते रहते हो, उसके अंदर अगर आप दूसरी सब चीज करो, ओके, क्योंकि क्या है, वो आपका जो है एक्स्ट्रा राउंड्स है, उसमें समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको एक्टिविटीज भी करना और ये भी करना है तो ठीक है, लेकिन जिन जपा करने बैठते हो उस समय ये नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर है प्रभु? यस प्रभु। और प्रभु एक चीज और था कि जब हम मतलब मेरा कुछ आदत है ये शुरू से ही कि जब मैं जपा करता हूँ तो मतलब 2-4 माला करके मैं ऑटोमेटिकली मतलब मेरी आईज क्लोज हो जाती है, आंखें बंद करके, तब मुझे ज्यादा अच्छा आनंद आता है मतलब जपा करने में। ये तो मेरा शुरू से ही थोड़ा है तो ये। और उस वक्त फिर जो साउंड वाइब्रेशन जो होता है, जो ये मतलब हरे कृष्ण ये मतलब ये मेरे सामने माइंड में घूमता रहता है और मैं जप करता रहता हूँ, तो ये भी ठीक है प्रभु या फिर? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अगर आपको जो है जपा में आंख बंद करके दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है और आप हरि नाम को बराबर याद कर सकते हो और आप सो नहीं जाते हो, आप अटेंटिव और ज्यादा अलर्ट रहते हो, कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे को तो अच्छा लगता है आंख बंद करके जपा करने से ना दूसरा डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, क्योंकि क्या होता है, आवाज दूसरे भक्तों का सुनाई देता है, लेकिन दूसरे भक्तों को देखने का जो है ना प्रभु, सबसे इंस्पिरेशन मिलता है। फिर बाद में दूसरे सब भक्तों का दूसरा बैकग्राउंड याद आने लगता है, तो उससे माइंड में डिस्ट्रैक्शन आने लगता है। बेहतर ये है कि आंख बंद कर लो, जपा का सबका आवाज सुनाई देता है, आप लोग ने सबका दर्शन ले लिया, आपने सबको प्रणाम कर लिया, और फिर आप जपा करना चालू करो और आप फिर पूरा कृष्णा के साथ में फोकस करते जाओ। so then it is good, subject to आप सो नहीं जाओ आंख बंद करके। अगर ज्यादा करके सो जाने की बात होती तो इट इज बेटर। तो आज मेरे को नींद आ रहा था तो मैंने आज आंख बंद किया ही नहीं, खींच रहा था, क्योंकि वो 1.5 घंटे ही सोया हो तो खींच रहा था मैं। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु। आज प्रभु फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट हुआ और आप मतलब इतना इंस्पिरेशन लगते हैं मुझे कि आप जो बोलते हो वो एकदम पूरा रियलाइजेशन। एक तो होता है हम बुक से पढ़ के बोलते हैं, लेकिन एक होता है कि रियलाइज जो जीवन में किया है वो चीज आप बोलते हो प्रभु। आज मेरे लिए ब्लेसिंग देना थोड़ी प्रभु। मेरा रियलाइजेशन नहीं है, मेरा गुरु महाराज का रियलाइजेशन है, मैं तोता की तरफ बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। यस पार्थ गोविंद जी, एनीथिंग एल्स? Yeah, Vishwanath Prabhu is there. ओके ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आवाज आ रहा है ना मेरा? आवाज थोड़ा बड़ा करो। ओके, हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा बड़ा होता था तो अच्छा था, चलेगा लेकिन पर ये। ओके प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि आप हमेशा बोलते हैं कि जब हम 60 क्रॉस कर देते हैं तो 60 क्रॉस करने के बाद हमको उससे पहले ही चैंटिंग का टेस्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चैंटिंग भी एक ऐसी चीज है जो हम एक कोने में बैठ के कर सकते हैं। तो उसी तरह से क्या रीडिंग और हियरिंग में भी हम बढ़ा सकते हैं क्या चैंटिंग की जगह पे, कि सिर्फ चैंटिंग ही बढ़ाना चाहिए, चैंटिंग में ही टेस्ट बढ़ाना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। रीडिंग और हियरिंग अगर आप बढ़ा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि 60 के बाद में जो है ना प्रभु, आपका ग्रास्पिंग पावर कम होने लगता है। आपकी जो है ना ग्रास्पिंग होता है ना, याद रखने की शक्ति होनी चाहिए और समझने की शक्ति होनी चाहिए,
प्रभु बॉडी स्ट्रक्चर जो है तकलीफ देता है। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, अभी मेरा 59 कंप्लीट हुआ, 60 रनिंग है। प्रभु जितना पहले मैं महाराज का लेक्चर्स के साथ में इतना ध्यान पूर्वक सफा सुनता था और अंदर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब थिंकिंग करता था, इतना अभी नहीं कर पा रहा हूं मैं। बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इतना थिंकिंग नहीं कर सकता हूं, घंटों के घंटों लेक्चर नहीं सुन सकता हूं। लेकिन जो है प्रभु जपा एक ऐसी चीज होती है कि जपा के अंदर जो है प्रभु, अगर आपने ध्यान जितने कैपेसिटी है उतना ध्यान पूर्वक जपा करोगे तो कृष्णा आपको रेसिप्रोकेट करेगा और आप ब्लिसफुल हो जाते हो। अगर आप दोनों कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, प्लीज गो अहेड। लेकिन ज्यादा करके, नॉर्मली ज्यादा करके जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ना, उसका ग्रास्पिंग पावर कम होने लगता है। और एक बार ग्रास्पिंग पावर कम हो जाने की वजह से वो इतना आनंद नहीं ले सकता है जितना वो पहले ले सकता था। तो नो डाउट प्रभुपाद इज एन एक्सेप्शन, टेक माय वर्ड्स। प्रभुपाद ने इतनी बुक्स लिखी है एट द एज ऑफ 70 के बाद में लिखा है। सी प्रभु, यू कैन नॉट कंपेयर विद प्योर डिवोटीज विद अस प्रभु, हम उनके साथ में कंपेयर नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप खुद देखो ना प्रभु, व्यक्ति को 60 साल के बाद में रिटायर क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है भाई, ही इज आउटडेटेड नाउ। तो वही चीज जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो ग्रास्पिंग पावर कम होने लगता है। आप बोलोगे, आप देखना प्रभु जी, जो पहला चीज जो है आप जवानी में जितना याद रख सकते तो आप अभी याद रख सकते हो। 60 साल आपका 60 उम्र नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कन्विक्शन के साथ में बोल सकता हूँ, मेरी याद शक्ति बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो उस समय जो है प्रभु, और उस समय मृत्यु भी सामने दिख रहा है, अभी जल्दी मृत्यु आने वाला है। तो मृत्यु आने वाला और जो है मेरी याद शक्ति कम हो गई, तो मेरा ऐसी चीज मेरे हाथ में आ जानी चाहिए कि जिसके वजह से मेरी कृष्ण भक्ति बराबर मेंटेन रहे, ब्लिसफुल रहे, कमिटेड रहे, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय डेथ वेरी सीरियसली, एंड फॉर दैट जपा गिव्स लॉट्स ऑफ सपोर्ट। इज इट ओके प्रभु? ओके प्रभु, मेरा एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या? या बोलिए प्रभु जी। एज अ ह्यूमन बीइंग हम थोड़ा कुछ ना कुछ गलती करते ही है, ट्राई करते हैं कि हम जितना हो सके उतना परफेक्टली सब चीजें करें। बट अगर हम कुछ गलती करते हैं तो डायरेक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस से लोग बोलने लगते हैं कि देखो ये इस्कॉन ज्वाइन कर लिया, भक्ति करता है इसलिए ये गलती करता है करके। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? तो उस टाइम पे एक्चुअली हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको वो टाइम पे वो बहुत मतलब वो टॉलरेट नहीं कर पाते वो चीज, वो कमेंट को हम। प्रभु जी, अगर आपने गलती जेन्युइनली किया है तो आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा। दैट इज फॉर योर प्योरिफिकेशन। भागने का नहीं रहता है प्रभु जी, भूल किया है तो भूल किया है। लेकिन जो है ना प्रभु, भूल करने के बाद में एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, उससे लोग ज्यादा नाराज होते हैं। लेकिन अगर भूल करने के बाद में एक्सेप्ट कर लेते हो और मैंने भूल किया है, प्रभु कोई लोग आपके सामने बोलेंगे नहीं। ज्यादा करके अपना फॉल्स ईगो अपने को ज्यादा मारता है, नहीं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस। फॉल्स ईगो बहुत टकराता है अपने को। लेकिन अगर आपने भूल कर लिया, अरे पॉलिटिक्स में भी जाओ ना, पॉलिटिक्स इतना खराब जगह होता है, वहां पे किसी ने गड़बड़ कर लिया, खोटा काम कर लिया, खोटा कुछ बोल भी लिया, और वो एक बार माफी मांग लेता तो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में फाइट करने का जगह ही नहीं रहती है। उसी हिसाब से, लेकिन वो बोलने के लिए उसका फॉल्स ईगो दबाना पड़ता है। हमारा भी एग्जैक्टली ऐसा होता है प्रभु, जब हमने भूल किया होता है ना, तब हमको जो है ना हमारा फॉल्स ईगो ज्यादा हैरान करता है, नहीं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर आपने भूल किया है तो अगर आपको बोल देना चाहिए, प्रभु मेरे से भूल हो गया है। अगर आपको नहीं हो पा रहा है, सो दैट यू शुड गो टू कृष्णा एंड टेल कृष्णा, कृष्णा ये मेरी वीकनेस है, प्लीज मुझे ये सब गड़बड़ हो रहा है, मेरे को कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ दैट आई कैन टॉलरेट इट आउट। I have made a mistake. There is no doubt about it. This is the way you can advance more, not by retaliating. Is it okay? ठीक है प्रभु जी? Okay, Pargoj ji, anything else? Yeah, on that. Yes, Prabhu. Darshan Mohan Prabhu, I'll just add this point, right? Yes, Hare Krishna प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल प्रभु। थैंक यू प्रभु जी फॉर તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, આપका ખૂબ ખૂબ આભાર है प्रभु जी ये जूम मीटिंग अरेंज करने के लिए। जब से
मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ तब से मेरा चैंटिंग काफी इम्प्रूव हुआ है। और मेरे 2 क्वेश्चन है प्रभु जी। पहला क्वेश्चन ये है कि कल मैं प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको अवैष्णव के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है, हम गृहस्थ है तो हमको कभी कोई फंक्शन में या मैरिज में कहीं बाहर जाना पड़ता है हमारे रिलेटिव के यहाँ पे, तो वहां तो हमें भगवान का भोग धराया हुआ प्रसाद नहीं मिलेगा। तो हमें उस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी हम नहीं जाएंगे, नहीं खाना खाएंगे तो लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले हैं, हरे कृष्णा ज्वाइन कर लिया, अभी आता नहीं है, ये सब बोलने लगते हैं। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि हम बहुत सारे हमारे क्लोज रिलेटिव है, जैसे हमारे मम्मी पापा है, भाई है, सिस्टर है, अब हम चाहते हैं कि वो भी भक्ति में आए। हमने उनको किताबें दी, उनको भी कभी बोला या माला करो, कभी मंदिर लेके गए, लेकिन वो इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब भगवान को प्रार्थना करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए ताकि वो भी भक्ति में आ जाए? प्रभु जी, पहला प्रश्न तो जो है ना प्रभु, प्रॉब्लम हमारा है, गांव का नहीं है। हमारी बहुत झंकना है बाहर का खाने की, हमारी बहुत झंकना है अच्छा टेस्टी खाने की, और हम कृष्णा को दबा करके बता देते हैं कि हमको नहीं खाना है। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है प्रभु। अगर आप शादी में या किधर भी जाएंगे तो बहुत चीज ऐसी होती है कि जो सात्विक रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल सलाद, सलाद के अंदर कुछ भी डालते नहीं है, कुछ डाल ही नहीं सकते, एकदम नेचुरल आइटम है। अगर आप सलाद लेते लो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, आप दूध चीज है, दूध आपको वहां पे दूध वाली चीज जो मिले उसको नेचुरल बोला जाता है, हम खा सकते हैं। फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स ले लो, वहां पे फ्रूट्स शादी वादी में सब अभी इतना सब चल रहा है ना, बड़ा बड़ा सब फ्रूट सब जगह पे मिलता है। फ्रूट्स है, सलाद है, दूध है, दूध की आइटम्स है, ये सब जूसेस है, कितनी सब चीजें मिलती है प्रभु जी शादी के अंदर। लेकिन हमारी वासना इतनी ऊंची है ना कि हमको दूसरा चीज खाने का रहता है, और हम कृष्णा का रबर स्टैम्प मारते, समझ मारे। प्रभु जी एक चीज याद रखिएगा, हम पूरी दुनिया को धोखा दे सकेंगे, हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। एक चीज याद रखिएगा प्रभु, और जितना धोखा देने की कोशिश करेंगे ना प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट नहीं मिलेगा। वो टेस्ट तो कृष्णा के हाथ में ही है भाई। वो टेस्ट जो है ना, जैसा हमारा अंदर का गचरा होगा ना, उसके हिसाब से कृष्णा रेसिप्रोकेट करेगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है तो पहला आप उसको लेते हो, और सबके साथ में खाने का रहता है। और आप जो है थोड़ा तो हम टेक्टफुल और डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, मेरी तबियत अच्छी नहीं है इसलिए डॉक्टर ने यही बोला है खाने के लिए, कोई बोलेगा नहीं उसके साथ में आप खाना खा रहे, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन हमको दूसरा खाने का है प्रभु, और खाने का भी है और कृष्णा का रबर स्टैम्प भी चाहिए, इसलिए घोटाला चालू होता है। सही बात है कि नहीं? सही बात है प्रभु जी। हाँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं अच्छा। प्रभु जी, सात्विक तो मिलता है लेकिन भोग नहीं मिलता है। मतलब हम तो यही ट्राई करते हो और भोग का भी हो जाता है। हाँ, बता जब भी आपके पास थाली आ जावे ना, तो एक साइड में जाकर के आप कृष्णा को याद करते हैं और कृष्णा को बोलते हो कि कृष्णा ये भी तो भोग लगाने का कोई जगह नहीं है, लेकिन जो है आप अभी इसमें से आप स्वीकार कर लीजिएगा और फिर मैं प्रसाद लेता हूँ। तो अगर ऐसा टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस ऐसी स्थिति आएगी तो कृष्णा हमको स्वीकार कर लेगी। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आप कृष्णा को याद करके जो है, भोग का मतलब क्या है? कृष्णा को याद किए बिना मैंने खाना नहीं खाया। अभी उस समय स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम ऑल्टर लगाओ और ये करो वो करो। उस समय कृष्णा को याद करके आप ले लो, आपने कृष्णा को भूले नहीं है। अभी सवाल ऐसा होता है प्रभु जी कि कभी कभी आपकी या तो आपकी वासना है खाने के लिए, या तो जो है प्रभु आपको जो है प्रभु ऐसी कोई स्थिति आ जाती है कि आपको खिलाना का आपको खाना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है बिकॉज यू आर जो होस्ट होता है वही तुमको खिलाता है, ये ले लो, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। उस समय क्या करना है? उस समय या तो आपकी इच्छा भी है, हो सकता है प्रभु हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेट अस एक्सेप्ट इट आउट, हम शुद्ध भक्त नहीं है अभी तक, और या तो वो कोई होस्ट होता है वो बनाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन प्रभु जी विच आई फील इट इज, उस समय आपको थोड़ी आपकी सिंसियरिटी कृष्णा को बताने के लिए chant some more rounds, chant some more rounds than your normal rounds। और वो राउंड्स करते वक्त कृष्णा से ये याचना करके बोलना है, कृष्णा मुझे संभाल लेना, ये घोटाला कर लिया है,
लेकिन मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बड़ी मुसीबत से मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला है, इसमें किधर फंस ना जाओ। अगर ये सिंसियरिटी के साथ में करोगे, आई फील इट, प्रभु कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, दूसरा क्या प्रश्न था आपका प्रभु? हाँ, फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स का बहुत सिंपल है प्रभु, बहुत फैमिली मेंबर्स के साथ में कभी भी प्रचार नहीं करने का रहता है। कोई फैमिली मेंबर्स आपको, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मालूम है ना वो लोग को, तुम कैसे थे और अभी सुधर गए, लेकिन वो लोग को वही याद आता है और वो उसको ऐसा ही लगता है कि ये नाटकबाजी कर रहा है। तो फैमिली मेंबर को कभी भी प्रचार नहीं करने का रहता है। हाँ, बुक्स दे दो, वो ठीक है, प्रभुपाद प्रचार करेंगे, बात अलग है, लेकिन आप बाहर के लोग को प्रचार करो, लेकिन फैमिली मेंबर को प्रचार मत करो। फैमिली मेंबर को डिवोटी बनाना है ना प्रभु, तो बहुत सिंपल है। आपको आपकी लाइफस्टाइल, आपका कमिटमेंट, आपका चेंज इन नेचर, आपकी लाइफस्टाइल में पूरा चेंजेस, और वो चेंजेस होने के बाद में कंसिस्टेंसी होता है। जब वो कंसिस्टेंसी देखते हैं ना, तभी फैमिली मेंबर चेंज होते हैं। उसको तभी समझ में आता है कि ये व्यक्ति अभी चेंज हो गया है। क्योंकि एक दो महीना, 4-5 महीना या 2-4 साल भी जो आप करोगे और वापिस पहले के जैसा कुछ करते जाओगे ना प्रभु, तो उसको बोला ये नाटकबाजी करता है, मुझे पैसे भी पहले पता ही था नाटक ही कर रहा है, अभी मालूम हो गया नाटक कर रहा है। लेकिन जब आपने पूरी तरह से आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है और आपका नेचर में जबरदस्त चेंज हुआ है, और फिर भी आप उनको बोलते नहीं हो चेंज होने के लिए, तभी वो चेंज हो गए। ठीक है प्रभु जी? यस प्रभु। ओके, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस पार्थोजी, एनीथिंग एल्स? प्रभु जी। Yeah, we have Ajay Gaurang Das Prabhu. Ajay Gaurang Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna, I'm not able to see your face. Hare Krishna Prabhu, can you see me now? No. Hare Krishna. हाँ ठीक है, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, my question is that मुझे लेक्चर्स हियरिंग में मतलब ज्यादा टेस्ट मिलता है, बट जपा में उतना टेस्ट नहीं मिलता है। इवन लाइक आई एम चैंटिंग विद द डिवोटीज, माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। तो लाइक जब मैं जूम में भी कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ना डिवोटीज आ रहे हैं, ये डिवोटी आ रहा है, फिर वो डिवोटी आ रहा है, ऐसा करके मैं देखता रहता हूँ, माइंड मेरा सुनता रहता हूँ, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना समय जपा करने आते हो प्रभु? हाँ, आप कितने समय से जपा करने आ रहे हो? रेगुलर? आप रेगुलर हो? लास्ट 1 month। तो फिर वो इतना जल्दी होता है क्या? ओके। इतना सालों के सालों तक जो है सब घोटाला करते हैं और आपको 1 महीने के अंदर इतना जल्दी जपा हो जाता है? अच्छा, आई हैव नॉट सीन यू सो मच रेगुलरली प्रभु जी। हाँ, अगर कोई भक्त जो है बहुत सीरियसली रेगुलरली कभी भी मिस नहीं करता, और वो अगर उसके लिए कुछ प्रॉब्लम होता है, देन वी कैन थिंक इट ओवर। बट यू आर जस्ट कमिंग फ्रॉम लास्ट 1 month में भी मैंने आपको रेगुलरली देखा है। करेक्ट? एम आई रॉन्ग प्रभु और एम आई राइट? राइट। तो फिर प्रभु, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सच ए बिग थिंग्स इन सच ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? ओके प्रभु, आई विल बी मोर कंसिस्टेंट। You have to prove by your action more, then you can ask those things प्रभु। पूरे सालों के सालों घोटाला किया और आपको 1 महीने के अंदर ही पक्का और 1 महीने में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा है, तो किस तरह से आप बातें कर सकते हो कि जो है मेरे को इतना नहीं मिल रहा है? कृष्णा भी बोलेगा ना, मेरे को टोपी घुमाता है क्या, इतने सालों तक गड़बड़ करता है, कभी भी इतना जपा अच्छा नहीं किया, और बाद में बोलते 1 महीने में थोड़ा थोड़ा आ रहा हूँ और मेरे को सुधर जाने का है। प्रभु इतना जल्दी होने वाला नहीं है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। You have to pay the price, and the price has to be consistency. अगर व्यक्ति ने कंसिस्टेंसी कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर जपा के अंदर नहीं बताया, it will not be possible. It will not be possible. क्योंकि जो है जितना तुम थोड़ा करते हो, दूसरा कचरा आता है, कचरा को बाहर निकालो, क्या जपा को कैसे सुधरोगे प्रभु? कंसिस्टेंसी दिखाओ, which I could not see in you प्रभु जी। That's why, that is the reason why we are going to start a new program is जो भी 192 राउंड्स भी जो करना चाहता है उसको जो है अपने उसको 50% की अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी उसको हम अलाउ करना चाहेंगे 192 राउंड्स करने के लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी दिखाएगा नहीं। 1 साल में 1 दिन 192 राउंड्स कर लिया और फिर करने के बाद में दिखता ही नहीं है, तो क्या पाया है? हमको ऐसे डिवोटीज नहीं चाहिए प्रभु जी, वो जो डिवोटी जो है पूरा कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे। कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस क्या है? भागवतम क्या बोलता है? नष्ट प्रायसु भद्रेसु नित्यम भागवत सेवा। क्या बोलते हैं? नित्यम, कंटिन्यूअस।
इतना जल्दी जाता है। बाहर की हवा कितनी भयानक है प्रभु, ये इतनी भयानक लाइफ का, इतनी भयानक जो है हवा चल रही है, और उसके अंदर आप कभी कभी आकर के जपा करने आओगे, अरे कैसे फाइट का मारोगे भाई। मैं तो वहां तक कहता हूँ कि रेगुलर करने वाले लोगों को भी तकलीफ होती है, तो हमारा तो तुम्हारा क्या है, वो अपना सवाल ही क्या आता है प्रभु। वो जो रेगुलर आता है उसको भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। Yes, So we Prabhu. have to pay the price, Prabhu. Sorry, Prabhuji, I am not supposed to say all these things. Please forgive me for that. No, Prabhu, you are absolutely right. So I'll be more consistent and I'll follow it. Consistency means you have to come with a commitment, huh, Prabhuji? इसलिए हम लोग बहुत पूरा रखते हैं कि आपको 16 माला आना ही है, because there are many devotees now I'm seeing, watching it. वो लोग जो है आते हैं और अपना our rule is very clear, वीडियो दिखाने का है। कभी कभी डिवोटीज जो है वीडियो नहीं दिखाते, दैट मीन्स क्या है, वो किधर है किसको मालूम है, कहाँ है वो। We has to show his face. If he's not showing his face, that means we don't know where is he. खाली एक ऑनलाइन में खाली लगा दिया और लगाने के बाद में तुम दिखता नहीं है तो मालूम है, हमको ऐसा ही लगता है वो नहीं है। हाँ, अगर तुमको जो है वीडियो लगाने के बाद में तुम बाहर जाओ, चलेगा तुम बाहर जाओ, लेकिन तुमको कॉन्शियस रहता है और सबको पता चलता है कि ये बंदा बैठा नहीं है, और उसको भी मालूम है, तो वो 15 मिनट 10 मिनट जो भी काम करके वो बैठेगा। लेकिन मैंने अभी देख रहा हूं थोड़ा बहुत, ऑफकोर्स हम लोग विपुल प्रभु आने के बाद में विल मेकिंग वेरी स्ट्रीमलाइन एंड विल कांटेक्ट दोस पीपल, इफ यू आर कमिंग यू हैव टू पुट योर वीडियो ऑन, otherwise don't come. Very simple. I'm sorry, Prabhuji, as far as I'm sorry, but I might be wrong, but you were many times you were coming and you were not putting on your video. Do you agree or not? Yes, Prabhu. This is nonsense. How can I come to know? How can we come to know that you are sitting over there? Prabhuji, for a Krishna consciousness, heart should be clean. In and out should be clean. We have to be clear. We cannot cheat Krishna, Prabhu. I can cheat you, you can cheat me, but I can't cheat Krishna, Prabhu. And then we can talk about big things. How it is possible? Krishna एक ही चीज बोलते हैं, तुम मेरे को धोखा देना चाहते हो क्या? We have to prove by our action that we are sincere and we are committed. So that's why I'm very clear about it. And now we will be making it very clear. Any devotee who is coming and he is not showing his face, they should not come and join here. They can go to YouTube. ये क्या है, Zoom में आते हो और दिखते ही नहीं हो, क्या जरूरत है तुम्हारी फिर इधर आने का? You have to come, you have to आपको वीडियो कंटिन्यूसली दिखाना है, अदरवाइज जो है मतलब ही नहीं है इधर आने का। ठीक है प्रभु जी, इट इज क्लियर? So henceforward, whenever you are coming, please come with your video on, because I have seen many times about you is when I see your name, I see why this person is not showing his face. ये अपना मुंह, ये अपना फेस क्यों नहीं दिखा रहा है? और फिर पूरा सेशन ऐसे ही जाता है, ये क्या है? आप जपा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, किसको पता चलेगा? और एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि आप ऐसा करने से दूसरे लोगों को जो है तुम डिस्ट्रैक्ट करते हो। दूसरे लोग एक ही चीज बोलेंगे, वो ऐसा कर सकता तो हम भी ऐसा करेंगे, और पूरा यूनिटी बिगड़ जाती है। प्रभु, डोंट डू दैट एटलीस्ट। इतना सुंदर माहौल बन गया है, इतना सुंदर अच्छा प्रोसेस चल रहा है, अगर आप उसको मदद कर सकते हो तो मदद करिए, लेकिन इसमें से शॉर्टकट निकाल करके दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए प्रभु। Yes, Prabhu. So sometimes if we feel sleepy while chanting, is it okay we can walk and chant? Definitely walk and chant, but that screen should be showing it. मैं भी आज वॉकिंग करके चैटिंग कर रहा था। That everybody should watch that you are walking and chanting. Nothing wrong. Everybody will be distracted. प्रभु, नींद आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन वो तकलीफ आने के स्क्रीन के सामने खड़ा करके रखो ना, जिससे तुमको भी याद आएगा कि मुझे सुधरना है। ये तो तुम बंद ही कर देते तो किसको मालूम ही नहीं होगा क्या चल रहा है। प्रभु जी प्लीज याद रखिएगा, भौतिक दुनिया के अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी चल सकती है, उसमें से शॉर्टकट निकल सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कोई भी चीटिंग प्रोपेंसिटी की वजह से आपको कृष्ण की मर्सी नहीं मिलेगी। और जब तक कृष्ण की मर्सी नहीं मिलेगी ना, तब तक जपा का टेस्ट आने वाला है ही नहीं। इट इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडेबल ऑन कृष्णा's कॉजलेस मर्सी। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपको दो है प्रभु जी, आप अगर यू आर वेलकम, प्लीज कम, लेकिन आने के बाद में हमेशा वीडियो चालू रखिएगा। पूरा सेशन आप वीडियो ही चालू नहीं रखते हो, ये क्या है? और आपको मालूम है रूल बनाया है, तो भी आप रूल को क्यों आप फॉलो नहीं करते हो? What is wrong? Why you are not following this rule?
I'm asking this question to you, Prabhu. Yes, Prabhu, because sometimes I'm getting up and chanting, but I'll keep the screen, in such a way that, I can be seen even while walking. अरे दूसरे लोग देखते नहीं यार, कितने लोग जो है सब वॉकिंग करके देखते नहीं थे क्या आप? There are many devotees who are walking and chanting. We made it clear, even I was also today walking and chanting. It has to be very clear, Prabhu. The rules should not be broken up, please. अभी क्या है प्रभु जी? Because Vipul Prabhu is not there, and there's lots of pressure to Parth Govind Prabhu and other devotees, Prasad Prabhu. वो लोग को जो है प्रेशर मेरे को नहीं देना है, पर प्रभु जी वी आर वेरी क्लियर. इतना सुंदर माहौल बन गया है प्रभु जी, कितना सुंदर माहौल है. सुबह में 5 बजे डिवोटी आकर के 32 माला हमारे सामने बैठ करके करते हैं. प्रभु जी वो लोग को डिस्टर्ब मत करो प्रभु. आपका एक्शन से वो लोग को लगेगा ये ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करूं. प्रभु जी ये माहौल बिगाड़े, बहुत बड़ा अपराध कर दोगे प्रभु आप. उसकी वजह से आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी प्रभु. इतने सुंदर डिवोटीज को जो है डिस्टर्ब मत करो. उनके माइंड के अंदर ये सब चालू हो जाता है, तुम ऐसा करते हो तो कि हम भी ऐसा करेंगे. और फिर वो लोग हमको वो लोग मैनेजमेंट पूछने आएगा तो बोलेगा वो कर रहा है तो हम भी ऐसा करें. अरे प्रभु इससे पूरी डिसिप्लिन बिगड़ जाती है. एवरी डिवोटी हु कम्स इन जूम, प्रभु आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप यूट्यूब में बैठो ना, वहां पे कैसे भी बैठो प्रभु जी, आप कैसे भी बैठो, आप चालू करो नहीं करो जो करना आप करो, कभी भी आओ कभी भी जाओ. लेकिन प्रभु वंस यू कम ओवर हियर वीडियो शुड बी 100% ऑन. हाँ खाली कोई टेक्निकल चीज, देयर आर सम डिवोटीज प्रभु ओडिशा से कहां से बैठते हैं, उनका इंटरनेट का कनेक्शन लूज होता है. लेकिन मैं देख रहा हूँ 2-3 मिनट में वापस आ जाता है, 2-3 मिनट में जा सकता है. दैट इज एक्सेप्टेबल प्रभु, वी कैन अंडरस्टैंड. वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो पूरा सेशन नहीं रहता है. आपका तो पूरा सेशन ऐसा था. दैट थिंग विल नॉट बी अलाउड प्रभु जी, प्लीज. प्रभु जी किसी को डिस्टर्ब मत करो. इतना सुंदर माहौल बन गया है, इतने सुंदर सिंसियर डिवोटीज आ रहे हैं, इतना सुबह में उठते. प्रभु यू विल बी शॉक्ड टू नो देयर आर डिवोटीज फ्रॉम दुबई, दे आर गेटिंग अप एवरी डे 2 o'clock जस्ट टू कम टू दिस जपा. उन लोग का माहौल बिगाड़ो मत प्रभु. Yes, Prabhu, I apologize for the mistake. Sorry. So now the action is, now if you are feeling sorry, next time whenever I see your name, it should be, video should be on. 100% it should be on. You are a technical man. I know you are an IIT boy. I know you. You are doing this type of a thing, Prabhu. Shortcut रास्ता निकालते हो. This is not the way, Prabhu. Please don't disturb devotees, Prabhu. एक अपराध कर लेते हो प्रभु. इतना सुंदर माहौल बन गया है, इतने सुंदर डिवोटीज मिल रहे हैं, इतने सुंदर डिवोटीज सिंसियरली जपा कर रहे हैं. सब दुनिया के सब छोरे कोने कोने में बैठे हुए हैं, सब आ करके जपा कर रहे हैं. और आप ऐसा बताते हो कि ऐसा भी कर सकते हो. ऐसा करते हो प्रभु? This is not proper. Sorry, I don't want to speak more because I am a person who खींच लूंगा तो बहुत ज्यादा ही खींच लूंगा मैं. Sorry Prabhu, please forgive me by whatever I spoken. I don't want to do aparad, but I wanted to clarify myself. Anything else? No, that's all, Prabhu. I'll work on it. Okay, thank you very much, Prabhuji. Sorry for the offense if at all I make for you. Hari Bol, Hare Krishna. Parth Govindji, anything else? Vipul Prabhu is there, I think so. Vipul Prabhu? Hare Krishna, Prabhuji, Dhanvat Pranam. Oh, Vipul. Vipul Prabhu was there yesterday with me. And मेरे रात को हम लोग 12:30 बजे निकले. और वो भी I told him, please बाबा सुबह में आना मत जपा करने के लिए, तुम तो ऐसे भी तुम पहली बार घर से बाहर निकले हो. So I told him not to come, but he has come. Tell me, Vipul Prabhu. प्रभु जी, ये जो भी अतुल गौरांग प्रभु ने क्वेश्चन पूछा और आपने उसका जवाब दिया, ये जो क्वेश्चन है ये सिंसेरिटी से रिलेटेड है. और सिंसेरिटी जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो डिजिटल नहीं होती है. ऐसा नहीं होता कि कोई सिंसियर है या तो नहीं है. सिंसियरिटी के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं. कोई थोड़ा सिंसियर है, कोई थोड़ा ज्यादा सिंसियर है, कोई कंप्लीटली इनसिंसियर है, कोई बहुत ही ज्यादा सिंसियर है. तो सिंसियरिटी भी मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में सब कुछ है. हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, हमने भौतिक दुनिया में कितना मार खाया है तो उस हिसाब से हमको कितने रियलाइजेशंस आए हैं. ऐसे बहुत सारी चीजों पे सिंसियरिटी डिपेंड करती है. जब आदमी मार खाता है तो लाइन पे आता है, ज्यादा सिंसियर हो जाता है. परफेक्ट. कई बार हम जब ये चीज बोलते हैं कि आप सिंसियर नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिंसियर नहीं है वो भी एक फैक्ट है, वो उसका सिचुएशन है, उसको नहीं समझ में आया है. तो जो इनसिंसियर होता है वो सिंसियर उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर उसके हाथ में होता तो वो ऑलरेडी सिंसियर होता. तो वो इंसान को हम कैसे मतलब कर सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर हम नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर ही कोई ऑपरेशन करेगा तभी हम सिंसियर बनेंगे. तो हम कैसे वैसे सिंसियर बन सकते हैं?
प्रभु, वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रभु, आपके जो पैरामीटर्स है ना, जो आपका पैरामीटर्स है, आपको इतना लेवल की आपकी सिंसेरिटी है, इतनी लेवल की आपकी इनसिंसेरिटी है। आपकी जो लेवल ऑफ जितनी सिंसेरिटी है ना, वो कैपेसिटी के मुताबिक यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा दैट फ्रॉम दैट लेवल आई एम ट्राइंग टू गो अप। You cannot expect to be like 6 Goswamis. You cannot be like Prabhupada. You cannot come to that level. You cannot be like Radhanath Swami. वो जो है ऋषिकेश के अंदर गंगा जी के पत्थर के ऊपर बैठ करके 1 महीना खाली एक गाजर के एक कटके पे जो है पूरा महीना निकाला। ऐसा तुम्हारा और मेरी कैपेसिटी के बाहर है, हम नहीं कर पाएंगे। मैंने एक बार महाराज को पूछा था एक बार कि महाराज, मैंने जर्नी होम आपका पढ़ लिया, मेरे को लगता है, मेरे को तो ये पढ़ने के बाद में मेरे लगता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज गेव मी, प्रभु वो आपके लिए ऐसा, ये आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपको ऐसा विचार भी नहीं करना है। तो अब मैंने बोला तो फिर मेरे लिए क्या हो पे जर्नी होम पढ़ने के बाद में? तो महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। मुझे बोला, तुम्हारी जो कैपेसिटी है ना, तुम्हारी औकात जो है, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड से तुमको कृष्णा को बताना है कि वो स्टैंडर्ड से तुम ज्यादा संघर्ष कर रहे हो, और वो संघर्ष तुम स्टेडीली आगे बढ़ने के लिए कर रहे हो। अगर आप वो करते रहोगे, भले तुम्हारा स्टैंडर्ड परम शुद्ध भक्त के लेवल के बहुत पीछे है, देन ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ कृष्णा यू आर अ सिंसियर डिवोटी। हाँ, एज फार एज अपना रूल इज कंसर्न, देयर आर बेसिक रूल्स है ना, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है प्रभु। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करना है और 16 माला करना है, प्रभु एक नियोफाइट डिवोटी होगा या तो सन्यासी होगा, वो सबको लागू पड़ता है। लेकिन अंदर लेवल के अंदर कितनी सिंसियरिटी बतानी है, that depends upon your conditioning, that depends upon your lifestyle, that depends upon your upcoming. अगर वो सब चीज आपने अगर बराबर किया है तो you have to level, आपकी लेवल से मुताबिक आगे करना है। अगर प्रभु जी आप देखो, प्रभु जी मेरा देखा है प्रभु जी, प्रभुपाद जो है प्रभु, आई थिंक वो जो गौर सुंदर, आई थिंक आई डोंट नो रिमेम्बर हिज नेम, जो मालती माता जी का हस्बैंड था, वो प्रभु जी वो ही वाज स्मोकिंग एंड डूइंग जगन्नाथ का जो है कार्विंग करते थे, वो जगन्नाथ का बनाते, स्कल्पचर बनाते, वो लकड़े का बना रहे थे। प्रभुपाद ने नहीं बोला कि दिस इज नॉनसेंस। प्रभुपाद ने क्या बोला, जितना तुम कर रहे हो उससे आधा करो भैया, अभी जब स्लो इतनी स्मोकिंग आधी करो, उससे और आधी करो, उसके और आधी करो। तो प्रभुपाद को अंडरस्टैंड, उसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा नहीं है, बट वो आधा करने में वो प्रभु जी जबरदस्त सिंसियरिटी कृष्णा को बता रहा है। ऐसा हमको भी ये चेक करना है प्रभु, हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से हम आगे बढ़ रहे कि नहीं। और हमेशा याद रखने का है प्रभु कि जो व्यक्ति जो है ना बहुत कैपेसिटी आगे बढ़ा भी रहा है ना प्रभु, लेकिन अगर उसके अंदर वो फॉल्स प्राइड है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ महान हूं, मैंने बहुत आगे निकल गया हूं प्रभु, और वो जो नियोफाइट डिवोटी थोड़ा संघर्ष कर रहा है ना प्रभु, इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, दैट डिवोटी इज मच मोर अहेड देन द पर्सन हु इज डूइंग मच मोर देन, then also प्रभु जी कृष्णा will not be happy with it because वो प्राइड उसके अंदर आ गया। बेस्ट एग्जांपल इज हनुमान जी। राम जो है मालूम है, वो हनुमान जो है बड़े बड़े पत्थर जो है वो डाल रहा था दरिया के अंदर, और वो स्पाइडर के क्या उसको स्पैरो बोलते हैं कि वो जो है चिपलुकलिया क्या बोलते हैं उसको, स्क्विरल, हाँ, वो जो है प्रभु थोड़ी मट्टी डालती थी, तो वो जो है हनुमान ने बोला तुम इधर से चली जाओ, मैं बड़ा बड़ा पत्थर लेके जा रहा हूँ। तब राम ने क्या बोला, तुम जितना कर रहे हो वही इतनी कर रही है। Both are pleasing with on the same level. ये क्या बता रहा है प्रभु जी, ये क्या बता रहा है? You are doing as per your capacity. Just put your sincerity at that level. Is it okay, Dipul प्रभु? प्रभु जी दिस इज ओनली हाफ, ये आधा ही है, क्योंकि आपने जो कैपेसिटी का बोला, कैपेसिटी सबका अलग अलग होता है। कैपेसिटी के हिसाब से इंसान बहुत कम कैपेसिटी होने के बाद भी अपनी पूरी सिंसियरिटी दिखा सकता है, लेकिन जब हम इनसिंसियरिटी की बात करते हैं तो बात आती है चीटिंग प्रोपेंसिटी की। दोनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। जब हम इनसिंसियर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीटिंग वाली भावना होती है। हमको दिखाना है कि मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हूँ, या फिर भक्ति मेरे को करनी नहीं है, सिर्फ मेरे को भक्ति दिखानी है। तो जब ऐसी भावना हमारे अंदर आती है तो कभी कभी हमको समझ में आता है कि मेरे अंदर भी चीटिंग प्रोपेंसिटी है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीटिंग प्रोपेंसिटी होगा उसको तो समझ ही नहीं आएगा, पर जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा उसका प्रोग्रेस हुआ है भक्ति में, उसको समझ में आता है मेरे अंदर अभी भी बहुत चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? क्या गुरु के लेक्चर्स बहुत ज्यादा सुनने चाहिए या क्या करना चाहिए? प्रभु जी एक कंसेप्शन बराबर याद रखना है, एक कंसेप्शन याद रखना है, हमको कृष्णा भक्ति की एडवांसमेंट जो होने वाली है ना, वो अहेतु की कृपा से ही होने वाली है।
आपके पास इतना ही, आप ऐसा नहीं बता सकते कि मेरे इतने दुर्गुण निकल गया तो मेरे को इतना रिजल्ट मिलना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है। प्रभु करोड़ों जन्मों से घोटाला मार के रखे है, 2-5 साल के 2-25 साल के अंदर इतना शुद्ध भक्त बनने वाले नहीं है हम लोग। एक्सेप्ट द रियलिटी, हमारे अनर्थ नहीं गए, हमारी वासना नहीं गई है इतना जपा करने के बाद में भी। तो एक चीज याद रखना है, अहेतु की कृपा से ही मेरा कोई होप है। और वो अहेतु की कृपा जो है ना प्रभु, वो जो है ना वो कृष्णा के हाथ में ही है। कोई हमारे पास एक भिखारी जो होता है ना, वो भिखारी को अगर मैं बोलूंगा कि मैं तेरे को 1 लाख रुपया दूंगा, अहेतु की कृपा है, वो अहेतु की कृपा है, लेकिन वो भिखारी को फिर बाद में 1 रुपया ही दूंगा, तो भिखारी को कोर्ट में जा सकता है क्या? ऐसा हम जो है कुछ बोल सकते हैं कृष्णा को, कृष्णा क्यों मेरे को दिया नहीं है? सो एक चीज याद रखना है, अहेतु की कृपा, और वो अहेतु की कृपा सिर्फ कृष्णा के हाथ में ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखना है, जितनी मेरी चीटिंग प्रोपेंसिटी या कुछ भी इन एंड आउट में गड़बड़ है ना, वो मैं दुनिया को धोखा दे सकूंगा, मैं कृष्णा को धोखा नहीं दे सकूंगा। कृष्णा का इन एंड आउट मेरा सब एक्सरे, बहुत अंदर अंदर का एक्सरे उसके पास सब पता है। मैं पूरी दुनिया को धोखा दे सकूंगा, कृष्णा को धोखा नहीं दे सकूंगा। और अगर मैंने इस तरह से करके कुछ टोपी घुमा करके कृष्णा को धोखा भी दिया, तो पक्का मुझे मालूम है वो अहेतु की कृपा नहीं मिलेगी। और जब तक अहेतु की कृपा नहीं मिलने वाली है ना, तब तक मैं इधर रगड़ते ही रहने वाला हूं। दिस विल कीप यू कंप्लीटली ऑन गार्ड प्रभु। ऐसा नहीं है प्रभु जी चीटिंग प्रोपेंसिटी हम नहीं कर पाएंगे, हमारे कंडीशनिंग आ जाएगी, चीटिंग प्रोपेंसिटी हम करेंगे, तो उस समय चीटिंग प्रोपेंसिटी के वक्त हम कृष्णा के पास में नंगे होकर के खड़े रहेंगे। कृष्णा मैंने घोटाला मारा है, मैंने चोरी किया है, मैंने गड़बड़ कर लिया है, मुझे ये करना नहीं चाहिए। पहला तो जो है मुझे माफ कर देना, दूसरा मैं पूरी कोशिश करूंगा दूसरी बार ना करूं, और तीसरा मेरी सिंसियरिटी दिखाने के लिए और आपको कन्विंस करने के लिए कि वो अहेतु की कृपा मेरे को उसमें से निकाल मत देना, उसके लिए मैं थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी या कुछ ना उधर उधर करता हूं, जस्ट टू मेक यू कन्विंस कि मेरे को उधर से आपके आंख में से निकाल मत देना। दिस तो यू कैन डू इट और नॉट। यस प्रभु जी, दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड प्रभु। प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए वेरी हार्ट टू हार्ट प्रोसेस भाई, वो घूमने वाला नहीं है। आप लोग सब लोग पढ़े लिखे होते, इधर घुमाओगे उधर घुमाओगे, लेकिन कृष्णा के पास तो हृदय देना पड़ता है, हृदय देना पड़ जाता है। मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु जी, कोलवेचे श्रीधर, उसके पास क्या था प्रभु जी? एक छोटी सी झुपड़ी थी, वो झुपड़ी में भी इतना पानी आ रहा था, कुछ कमाता था, वो कमाने में भी जो है आधा पैसा गंगा की सेवा में देता था और बाकी का 50% के अंदर वो सब चला रहा था। प्रभु उसके पास जो है महाप्रभु रोज जाकर के 2 घंटा उसके साथ वार्तालाप करते थे। पॉसिबल है कोई व्यक्ति, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैविंग ए टॉक विद ए पर्सन फॉर 2 hours एवरी डे, और आर्ग्यूमेंट्स प्री आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट प्री आर्ग्यूमेंट, उसको कोलवेचे श्रीधर को घुमाते रहते थे, जस्ट बिकॉज महाप्रभु वांटेड टू स्पेंड द टाइम विद। ये क्यों हुआ है? बिकॉज वो जो है ना प्रभु, वो कुछ बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, वो ऐसा टोपी घुमाने का काम नहीं कर पाता था, लेकिन उसका एक चीज बहुत सीरियस था, अंदर और बाहर एक था। और वो अंदर और बाहर एक होने की वजह से महाप्रभु पूरा गदगदित हो गया। वहां तक महाप्रकाश लीला के अंदर डिवोटी को भेजा, जाओ कोलवेच को लेके आओ, उसको लेके आओ। क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर है। प्रभु हमको वहां पे फोकस करना, फोकस ऑन दैट, अंदर और बाहर। हाँ हो सकता है प्रभु कंडीशनिंग की वजह से जो है अंदर और बाहर एक नहीं रहा, तो अंदर और बाहर नहीं रहा तो कृष्ण के पास में जाकर के बोल तो देंगे ना, अंदर बाहर एक नहीं है, सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ और सीरियसली सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ब्लैकलिस्ट मत कर देना भाई। मेरे को ब्लैकलिस्ट करेगा तो मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। That at least we should tell. Is it okay, people Prabhu? Thank you, Prabhu. You at least. Anyway, you take care of बाबा, अभी तुम आओ मत, अगर तुम्हारा तबियत बिगड़ रहा है बैठने का तो मेहरबानी करके मत आना। You become all right, then you come. ठीक है प्रभु जी? We'll end it. Going Prabhu, anything else? Nothing Prabhu. We can wind up. Okay. So nice of you, Prabhu ji. So nice of you.
आज मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है प्रभु, आज नया साल का दिन है। Of course, I was very tired. I should not say also, but मुझे क्यों आज मेरे को रखा था नया साल। इस भी है सिंसियर डिवोटीज, इतने सिंसियरली जब बैठे रहते हैं जपा करने के लिए। I wanted to reciprocate the love which they are showing for me. Prabhu, I'm very happy. I can tell you from my heart, very happy to see such a wonderful devotees showing tremendous sincerity. सर्दी का मौसम है, कितना न्यू ईयर के अंदर क्या क्या लोग रात के टाइम पे न्यू ईयर ईव के अंदर किधर किधर लोग जाते हैं, सब आप लोग ने छोड़ दिया है। रात को जल्दी सोना पड़ा, वो कुछ न्यू ईयर ईव के लिए कोई बैठे नहीं है, और सुबह में आकर के हमारे साथ 32 माला करते हैं। How can I not get attracted to it? Such a wonderful life. This is what is Krishna consciousness. We have to prove by our action that we are serious, Prabhu. We have to prove our action. Prabhu, I'm serious. Our action should speak more than our words. So, Prabhu, I feel so happy. आप मेरे साथ में रहना, प्रभु जी। इतना तड़फड़ वाला आदमी हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ, किधर भी आगे पीछे देखता नहीं हूँ। अब मुझे रिजेक्ट मत कर देना प्रभु। I humbly request each and every devotee for that. मेरा ध्यान रखना, मैं भक्ति से चला ना जाऊं। I need devotees प्रभु। हमारे गौड़ीय संप्रदाय वहां तक जाता है कि अगर कृष्णा सामने है और एक बार जो सिंसियर डिवोटी सामने है, तो एक मैच्योर डिवोटी उसको बोलते हैं कि वो डिवोटी जो है ना, वो कृष्णा को साइड में रख देगा, वो बोलेगा कृष्णा आपके बाद में भी मिलूंगा, पहले सिंसियर डिवोटी का ब्लेसिंग पहला लेना है। And Krishna becomes very happy with that. क्यों? क्योंकि उसको पक्का पता है कृष्णा को कि मैं तो 2 मिनट 10 मिनट के अंदर बाद में चला जाऊंगा, लेकिन ये डिवोटीज उसके सिरे हमेशा रहेगा और उसको एनकरेजमेंट देता रहेगा पूरी लाइफ लॉन्ग तक। So प्रभु, you are so indebted to each and every devotee. प्रभु मेरे साथ में रहना, वेरी हैप्पी प्रभु जी। जैसे ऐसा ही खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। देखो प्रभु जी क्या लाइफ बन गया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ प्रभु, हमारे को कभी कभी ड्रीम आता था कि मैं ऐसा जीऊंगा क्या। कभी कभी ड्रीम आता था कि मैं रोज सुबह में जल्दी उठूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, जपा भक्तों के साथ में करूंगा, एक ही आसन में बैठ करके जपा करूंगा, एक ही सेशन में मेरी 16 माला हो जाएगी, और वो इतनी इंप्रेशन डीप हो जाएगी मेरी लाइफ के अंदर कि मैं पूरा दिन कृष्णा को याद करते करते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। प्रभु वो ड्रीम था हमारा, ड्रीम। और वो भी बहुत रेगुलर ड्रीम भी था, कभी ओकेजनल ड्रीम्स आता था हमारे लाइफ में। और थोड़ी सिंसियरिटी के बाद में जो है प्रभु, ये ड्रीम आज रियलिटी हो रही है हमारी लाइफ में। ये ड्रीम रियलिटी हो रही है। हाउ मच वी आर इंडेटेड टू ऑल द डिवोटीज प्रभु। दैट ड्रीम हैज बिकम लाइक ए रियलिटी। क्या जीवन प्रभु। आई डोंट हैव टू से टू एवरीबॉडी, एवरीबॉडी चेक योरसेल्फ। सब चेक करो अंदर जाकर के, कितना लाइफ में परिवर्तन आ गया है सुबह में जपा करते और ये भक्तों के संग में जपा करने में। क्या चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया प्रभु जी। ये चेंज है ना, कुछ ऐसा मत समझना कि जो है ना बहुत पैसे देने से मिलने वाला है, बहुत चैरिटी करने से मिलने वाला है। ये चेंज है तो की कृपा से मिला है। दिस चेंज वी हैव गॉट इट ओनली बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। सो प्रभु प्लीज प्लीज हैंग ऑन विद दिस। ये पकड़ करके रखिए और देखो बेस्ट थिंग क्या होगा मालूम है। मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नियोफाइट प्रभु, लेकिन मेरे को एक चीज अच्छा लगता है कि जो है ना, अगर हमारा जपा का टेस्ट बढ़ते जाएगा ना, तो एक चीज होगा, और वो क्या होगा पता है प्रभु। धीरे 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 मृत्यु से डर कम लगेगा। ये सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है प्रभु। आप लोग को पता नहीं है, लेकिन मुझे तो 60 होने आया ना, तो मेरा सबसे ज्यादा डर ये लगता है, मृत्यु से बहुत डरता हूं प्रभु। मृत्यु से डर लगता है, लेकिन ये जो हरि नाम जो है ना प्रभु, ये धीरे 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 तुमको फियरलेस करने लगेगा। क्यों 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 फियरलेस लगेगा? क्योंकि तुमको लगेगा कृष्णा इज देयर विद मी, कृष्णा संभाल लेंगे मुझे। एनीवे मैं बोलते जाऊंगा प्रभु जी। आई थिंक आई हैव टू एंड बिकॉज़ पार्थ गोविंद प्रभु इज आल्सो सीइंग, आई एम सीइंग हिज फेस, हिज फील्स अराउंड बहुत हो गया। No, bro. My son he wants to go somewhere, so he was asking me, when are you coming? My son. So I was just trying to. I think we'll end it, Prabhu. We'll meet tomorrow as usual in the morning, and we'll chant 32 rounds tomorrow also. Yes, sir. Vacha kalpataruvasya kripa sindhu bhayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी and keep me in your shelter, Prabhu. Hari Baba, Hare Krishna. Thank you so much.